not here, they're going to miss lot many important things which we are going to discuss today. So independent events, we already did talk about few problems based on that. Started with the concept, the formula, the condition, how to ensure whether the given two events are independent or not. We also started with NCERT exercise 13.2. So check out क्वेश्चन नंबर 11th एनसीईआरटी बुक का ही है ये एक्सरसाइज 13.2. Given two independent events A and B such that P of A is 0.3, P of B is 0.6, you are to answer the following parts. So you will find that many of the parts are very simple. First part, P of A and B refer to A intersection B, and this is nothing but since A and B are independent, that's the reason ये इसके इक्वल आ जाएगा 18 and 0.18. Second part में it is A and not B. Now which rule I am going to use? Since A and B are independent, so is A and B dash. So this will actually equal to this, और ये हो जाएगा 0.3 into 1 minus 0.6. That is a simple calculation, 0.12. Coming to the third part, P of A or B or at least one of them, एक ही मतलब होता है, that will be my formula. Or the last term, this one, since A and B are independent, so you probably know कि इसे हम ऐसे split कर देंगे, putting all the given values and simplify. You will have your answer. We also discussed the last part. Now, what does that mean? Neither A nor B. So I can use De Morgan's law, but there is a simple result. If A and B are independent, so is A dash and B dash. So I will just substitute now their values and simplify. So that would be your required answer. I hope it is clear, क्योंकि ये तो simple मैंने अभी start किया है again with a direct formula. Check out this logical question. हो सकता है आपको realize हो ये आप 11th में ही कर चुके हैं. A die is tossed thrice. So पहली बात, thrice का मतलब there will be 216 cases. You need to find the probability of getting odd number at least once. So there are two ways. The lengthier way, definitely I will avoid, and the one easier logical way, which says 1 minus probability of getting even and even number अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि इसमें क्या चाहते हैं, ऑड नंबर कम से कम एक बार आए.
तो मैंने क्या कर दिया, टोटल में से, टोटल माने 1 होता है टोटल सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्री इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज, तो 1 माइनस कोई भी ऑड नंबर नहीं आए, एंड getting the even number or odd number, they are independent, hence it will become p of even, p of even, and p of even. Probability of getting even number is 1 by 2, 1 by 2. So 1 minus 1 by 8, which is your required answer. The or part, try in homework, means अगर मैं वहां पर सीधा शुरू करता इससे, गेटिंग दी ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑड नंबर, और में मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑड नंबर्स, or getting probability of all three odd numbers. So that way also you can solve and simplify. The final answer would be surely 7 over 8. But this is of course tricky and calculative as well, because there will be many possibilities which will be there. For example, let me just focus on this particular part. प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, ओ से अगर ऑड नंबर में लिखता हूं, ई से इवन, ऑड एक ऑड हो मतलब दो इवन हो जाए, और सोच के देखिए, हो सकता है ऑड सेकंड नंबर पे आता, और हो सकता है ऑड थर्ड नंबर पे आता। तो एक ये जो चीज है, दिस विल गिव राइज टू द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। दो, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है विच इज हाफ, 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 और इसी का हो जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि इनकी भी सेम होगी। Similarly, you will have to think about these two cases, add all the probabilities to get the answer as 7 by 8. Do it in your homework and also verify. सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1/2 कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1/2 कैसे आएगी? एक मिनट, इवन नंबर, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और ऑड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कितनी होगी, इवन नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, आउट ऑफ 6। एक टॉस में, सिंगल टॉस में तो 3 इवन नंबर है आउट ऑफ 6, ऐसे ही 3 ऑड नंबर है, तो दिस इज 1/2 ओनली। सर लेकिन हमने डाई को तो 3 बार फेंका है ना। हाँ, तो 3 बार ये कर तो दिया, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। सोचा यहां यही तो है, 3 बार टॉस करा, बट क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगे इसीलिए ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके सर। वही कॉन्सेप्ट यूज करा है, बट सिंपल वे में मैंने इसको यहां कर लिया है। अब इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आते रहे हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट और 2 बॉल्स को ड्रॉ करा है।
containing 10 black balls and 8 red balls. Find the probability. First part, both are red. Both are red का मतलब क्या हो गया? Simply red and red ball. और ये ऑब्वियस है, अब आप अपने आप सोचिए, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई भी बॉल आ सकती है, कहीं लिखा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, बट ये कॉमन सेंस से सोचिए आप. देयर इज नो चीटिंग, नो बायस्डनेस विच इज मेंशन्ड. सो रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, तो कोई भी आ सकती है मींस दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. सो रेड बॉल आए पहली वाली, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/18. और क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, अगेन इट विल बी 8/18. सेकेंड पार्ट में और थर्ड में एक लिंक को और डिफरेंस को ध्यान से समझिए. इसमें क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. तो अब ये इनकी पोजीशन फिक्स हो गई है, ब्लैक आनी चाहिए और फिर रेड आनी चाहिए. तो ब्लैक आए पहली बॉल, ब्लैक 10 है आउट ऑफ 18 बॉल्स, एंड फिर ये रेड आ जाए, है तो केस विद रिप्लेसमेंट का ही. दिस वुड बी योर आंसर. चेक आउट द थर्ड पार्ट नाउ. अब इसमें क्या डिफरेंस मिल रहा है? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. मींस पोजीशन की बात नहीं करिए, जैसे यहां तो फर्स्ट एंड सेकंड कहा था, तो क्या हो सकता है यहां ब्लैक आए फिर रेड आ जाए? नहीं तो और क्या हो सकता था? पहले रेड आए फिर ब्लैक आ जाए. और ये आपका केस समझ लीजिए ये एंड का ही होगा. सो ये क्या बन गया? P ऑफ B इंटू P ऑफ R प्लस P ऑफ R इंटू P ऑफ B. चाहे ये इसका डबल ही होने वाला है, अभी ये रियलाइज हो जाएगा. व्हाट इज P ऑफ B? 10/18. P ऑफ R 8/18. बस अब यहां क्या फर्क पड़ेगा, ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में. सो बेसिक आइडिया इस टर्म का, फर्स्ट वाले का ही ट्वाइस हो जाएगा, एंड दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर. तो अभी 1 मिनट में वेट कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को आप पढ़िए और फिर पहचानिए ध्यान से. कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सिंपल अभी स्टार्टिंग किया है केस. आगे वाले क्वेश्चन थोड़े 2-3 डिफिकल्ट भी मिल सकते हैं. Now check out this another very important question.
probability of solving a specific problem independently by A and B. तो आपको P of A given है half, P of B 1/3 respectively. ऑब्वियसली ये जरूरत पड़ने वाली है, मैं निकाल ही लेता हूं. ये भी हाफ हो गया और ये कितना हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/3 से. अब क्या कहा गया है? इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, find the probability that the problem is solved. Can anyone tell me इसमें कितने केसेस पॉसिबल है? अब यहां लॉजिक है क्लास 6th का. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? कब कब हो सकता है कि दो लोग काम कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम पर अलग अलग से और वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाए? तो क्या हो सकता है वो केस? Sir, 3 cases. यस, देयर विल बी 3 केसेस. बताओ कौन कौन से सोच पा रहे हो? सर पहले तो A से हो जाएगा, B से नहीं होगा. चलो, ए ने कर दिया एंड बी नहीं कर पाया, या Then sir is opposite. B से हो गया, A से नहीं हुआ. ए से नहीं हुआ, बी से हो गया. प्रॉब्लम सर तो दोनों फिर से भी हो गया. solve होगी. यस, थर्ड केस भी ध्यान से सोचना है कि दोनों ने भी सॉल्व कर दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही गई ना. तो 3 केसेस वुड बी देयर. इस तरह से अगर ये प्रेजेंटेशन हो गई, इसके बाद आपको पता है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो A एंड B डैश दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. इसीलिए आई विल स्प्लिट, इनका फॉर्मूला ये बन जाएगा. रीजन आउट कर देंगे तो दैट इज गुड, बट अगर वो नहीं भी कर रहे हैं, दैट राइटिंग प्रेजेंटेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो पुट द वैल्यूज. सिर्फ मैं ऊपर से देखकर वैल्यूज ही लिख रहा हूं. सो दैट वुड बी 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. सॉल्व इट. बस ये तो फिर 2 3 4/6 योर रिक्वायर्ड आंसर. आप चेक करिए, मैंने जानबूझ के यहाँ 2 से 2 को कैंसिल नहीं करा था इस टर्म में, ताकि सेम एलसीएम बना लूं मैं. लुक एट सेकेंड पार्ट, वो भी डिस्कस हो चुका है. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स. तो अब की बार क्या हो जाएगा? ए ने कर लिया, बी नहीं कर पाया, क्योंकि एग्जैक्टली एक ने सॉल्व करना है, या बी ने किया, ए नहीं कर पाया. दैट्स इट. अब इसमें ये वाली थर्ड टर्म ऐड नहीं होगी. बाकी तो अब आपको पता चल ही गया है पिछले वाले पार्ट से. आप स्प्लिट कर देंगे लाइक दिस, substitute the values, so that would be probably, आपको पता चल ही रहा है कि मैं एक्चुअली यहीं से देख के कर रहा हूं, तो ये और ये आ जाएगा. so that would be 1/2 in this case, your answer. अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट पूछ रहा हूं. The problem is not solved. What is the answer? One by three. Yes, it is 1/3. कैसे सोचा होगा आप? सर सॉल्व को 1 माइनस वो कर दिया ना 2/3. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मेरा था 2/3, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड मैंने पूछा था, तो वो 1 माइनस
2/3 हो जाएगा योर आंसर, दैट्स इट। तो इस तरह के कभी कभार बोर्ड में आते रहे हैं क्वेश्चन 2 मार्कर में, या इवन 4 मार्कर भी आया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स थोड़े ऐड कर दिए। Again, this is the repeated type of a problem. You just need to check about the independency of the given two events. तो बस वो केसेस को लिखना आना चाहिए। आपको पता है कार्ड प्रॉब्लम में ये एस है, स्पेड है, किंग और क्वीन, एवरीथिंग यू डिड इन क्लास 10th ओनली। तो 10th क्लास से मेथड से लगाकर आप इवेंट्स को लिख लीजिए, उनकी रिस्पेक्टिव इंटरसेक्शन निकालिए, प्रोबेबिलिटीज निकालिए, एंड जस्ट चेक आउट विद द फार्मूला दिस के अगर ये आ गया इसके इक्वल, देन दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। ऑल द पाथ्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। In a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, तो ये probability of हिंदी वाला न्यूज़पेपर 60/100। 40% read English newspaper and 20% read both हिंदी and English। तो ये यहां से तो इतना आप सभी को पता है, इजीली लिख लिया, ये तीनों चीजें गिवन है। मैं जानबूझ के इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाऊंगा, एलसीएम सेम रहने देना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, a student is selected at random, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper। probability of neither हिंदी, ना ही हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ पाए, ना ही इंग्लिश का, ये आएगा, ना ही इंग्लिश का। तो आपसे ये पूछा है, क्या करें? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं। ओके, दैट इज वन वे। क्या मैं इसे ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं और डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें इनकी? So this is a question mark. I need the answer. Is it hold true? Note carefully what is नो सर, नहीं बन रहा। हाँ जी, नहीं बन रहा। क्यों? मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, and of course it is not equal to 20/100, that is ये इसके इक्वल नहीं आया। what does that mean? H and E are not independent, और अगर वो इंडिपेंडेंट H and E ही नहीं है तो H dash और E dash of course they will not be independent। तो अब की बार ये नहीं लग सकता यहां। तो फिर फर्दर क्या करना पड़ेगा? एज यू हैव राइटली मेंशन,
अब मेरे पास चॉइस नहीं है, अब मुझे डी मॉर्गन्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। ये बस, इसके बाद तो चलिए, अगर ये सोचा गया हैविंग द डायरेक्ट फॉर्मूला ग्रेड 11th वाला, और एवरी टर्म इज नॉन टू मी, तो 1 माइनस में 60/100 प्लस 40/100 माइनस 20/100, सॉल्व इट, योर आंसर। What about B part? Can anyone understand and tell me कि एक्चुअल में क्या पूछा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। Absolutely. If you look and read the language, if she reads Hindi newspaper, ये मुझे गिवन हो गया है। If she reads, तो ये गिवन है। फिर कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश की निकालनी है, गिवन दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। बस अगर ये रियलाइज हो गया लैंग्वेज से, इट हैज गॉट अ वेरी सिंपल फार्मूला ये, और ऑब्जर्व दैट आपको दोनों वैल्यूज गिवन है। ये आ गया 20/100 ओवर, एच वाला था 60/100, सॉल्व इट, योर आंसर। सेम वे सी पार्ट, वेरी सिंपल। Any doubt to anyone? ओके ठीक है लक्ष्य, बाकी औरों से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर कम से कम चैट बॉक्स में यस या नो आ जाए। एनी डाउट टू एनीवन? ओके ठीक है तनिष्क गुप्ता, ओके प्रणव, आर्यन पांडे, शुभांगी फाइन, केशव ओके, आकांक्षा, So परिधि, my चेष्टा। message is not going through. अच्छा ठीक है, कौन बोल रहा है? मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। Me. अच्छा ठीक है ओके ठीक है, नमन, विशेष, संजना, जयादित्य, फाइन, ओके आदित्य। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, बट अब इसमें भी देखो बोर्ड में थोड़ा चैलेंजिंग भी करा गया है। वो किस तरह से? अभी तो चलो सिंपल केस है, एवरीवन विल बी एबल टू डू इट, आई एम वेटिंग, सोचिए ध्यान से। बस अब मेरे नेक्स्ट मैंने आई थिंक 4 क्वेश्चंस रखे हैं, चारों बोर्ड के जो आए हुए हैं। A speaks the truth 60% of the cases and B in 90% of the cases. तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो A की ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 60/100 और B की आपको बताई है 90/100। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? So ये तो चलो इजीली आ गए। अब आपको निकालना क्या है, कंट्राडिक्ट कब करेंगे ये एक दूसरे से? ए ने सच बोला बट बी ने झूठ बोला, सेम फैक्ट को स्टेट करने में हो गया आपस में कंट्राडिक्शन? नहीं तो ए ने झूठ बोला,
बट बी ने सच बोल दिया. अगेन दे आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर. एंड नाउ नथिंग इज मेंशन्ड और रिटन अबाउट इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो कॉमन सेंस, दो पर्सन्स हैं, दे आर इंडिविजुअल, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, अपने हिसाब से वो सच झूठ डिसाइड करके बोलेंगे, तो दे आर इंडिपेंडेंट स्पीकर्स. इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो गए. सेम वे ये हो जाएगा. यू सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज टू गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो मैं दे रहा हूं वो और लॉजिकल है. लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट. वो दूसरे सेट में ये तो यहां तो चलो मैंने जहां से रिसोर्स लिया 2001 लिखा हुआ है, बट यही क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, 16-17 में, और दो सेट्स में अलग अलग. एक सेट में ये था क्वेश्चन. सर इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे. मतलब कि यस, बिल्कुल. देखो वही सिंपल अब लॉजिक है, कुछ नई चीज तो रही नहीं. यहां भी वही है, प्रोबेबिलिटी पी के सच बोलने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू स्पीकिंग द ट्रुथ, ये बताया था. इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. तो अब यहां देखो, एक एग्री होने का मतलब कई स्टूडेंट्स ने बताना बोर्ड में गलती क्या करी थी. ये लो, इन दोनों ने सेम सेट फैक्ट के ऊपर बोल दिया, एग्री कर गए, बट दिस इज इनकम्प्लीट. और सोच के देखिए, हो सकता है दोनों ही झूठ बोल दें. अगर दोनों झूठ बोलेंगे तब भी तो वो एग्री कर गए एक दूसरे के साथ. सच चीज नहीं बोली तो कुछ झूठ बोल दिया, तो दे विल एग्री. नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स वेरी सिंपल. तो P ऑफ P, सी नोटेशन से देखो थोड़ा कंफ्यूज, सॉरी ये इनटू आएगा. अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगे ना तो P ऑफ P थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, तो आप ये लिख दो, लेट E बी द इवेंट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ बाय A एंड F बी द इवेंट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ बाय B, सो दैट वो P ऑफ E, P ऑफ F सिंपल नोटेशंस आपकी आ जाएंगी, और फिर ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसका ये आ जाएगा. सो कितना हो गया एक बार मुझे बताओ. 70/100 इंटू 80/100 प्लस, फिर ये P ऑफ P डैश मैंने लिखा नहीं है ऊपर पर ऑब्वियसली 30/100 एंड 20/100. सो कितना आ गया ये 56/100 प्लस 6/100. कितना आ गया ये 62/100. सो व्हाट इज द आंसर? आपको लगता है ये आंसर है? 0.62. नो. अब देखो, अगर आपने लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को समझो, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया है क्वेश्चन में. आधा नंबर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कट गया क्योंकि उन्होंने इसको आंसर लिख दिया. आपसे क्या पूछा था? परसेंटेज. 31/50. नो, परसेंटेज. भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 62/100 को परसेंटेज में चेंज करना हमने 6th में सीखा था. 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो. Isn't it 62%? आंसर. थिंक लॉजिकली. अब आपसे प्रोबेबिलिटी की टर्म में नहीं पूछा था आंसर,
परसेंटेज की टर्म में पूछ लिया था। तो कई बार हम ये टर्मिनोलॉजीज को मिस इंटरप्रेट या पढ़ते ही नहीं है। भाई प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन होगा तो सीधा 62/100 या लोएस्ट फॉर्म में ले आए, कुछ इनकम्प्लीट था। आई एम श्योर नाउ इट इज क्लियर कि परसेंटेज में आपको 62% कहते हुए ही आंसर देना है। Okay, this is the question for your homework. Concept is very simple. अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, we did consider 2 persons. अब अगर 2 की जगह 3 पर्सन हो जाए, मेथड विल रिमेन्स, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन्स द सेम। सिर्फ कैलकुलेशन या क्या फर्क पड़ेगा, दैट यू नीड टू टेल मी। सो अभी भी इसके बाद वैसे जो मैंने लेने हैं वो क्वेश्चंस हैं पेंडिंग। सो आई विल गिव दीज 3 क्वेश्चंस एज योर होमवर्क। ट्राई इट आउट एटलीस्ट। जो 3 क्वेश्चन दूंगा, पहला और दूसरा तो आप शायद सभी कर लेंगे, थर्ड वन चैलेंजिंग जाने वाला है। सो होमवर्क में मैं आपको और भी दिखा देता हूं। वैसे ये हैं बेस्ड ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉल्व अनसॉल्व में से ये वाले आ रहे हैं। तो ये आपका चलो होमवर्क शीट हो जाएगी। विद दिस आई एंड द क्लास। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क और यू कैन लीव। Leave the meeting. Leave the meeting fast. Jasnoor, Pranav, Shrishti, and Yuvraj. I'm still waiting for you to leave the meeting. Jasnoor, Pranav, Shrishti, Yuvraj. I'm removing you all.